Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today let us meditate Ezekiel 29:21. आज के दिन एजकेल के पुस्तक 29 अध्याय के 21 वचन पर हम अध्ययन करेंगे। I'll give thee the opening of mouth in the midst of them. उनके बीच तेरा मुंह खोलूंगा। When we go through the book of Ezekiel, एजकेल के पुस्तक में हम पढ़ेंगे, the prophet preaches 7 sermons against Egypt. भविष्यवक्ता ने मिस्र के विरोध में 7 प्रकार के संदेश को देता है। The verse for our meditation today falls into the second sermon of these 7. आज के दिन का हमारा जो अध्ययन के लिए वचन है और उस 7 संदेशों में से एक है। Yeah, this is the second one. ये दूसरा संदेश। And first of all, पहली बात ये है, notice the date of this message. देखिए ना, ये जो संदेश दिया है ना, उसकी तारीख पर देखिए। In verse 17, 17 वचन it is written that यहाँ लिखा है, in the 7 and 20th year, that is 27th year, in the first month, in the first day of the month. 27 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को। If we see the date of the last message, और फिर हम आखिरी संदेश की तारीख में देखेंगे, just 16 verses earlier, 16 वचन पहले, that is the last message before this, the first message. और इससे पहले का जो पहले संदेश में, That is, if you read 29:1, इसका मतलब है 29 अध्याय के पहले वचन। it is written there, यहाँ लिखा है, in the 10th year, in the 10th month, and the 12th day of the month, 10वें वर्ष के 10वें महीने के 12वें दिन को the word of the Lord came to me. यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। What does it mean? इसका मतलब क्या है? The gap between the two messages is nearly 16 years. यहाँ 2 संदेश के दरमियान समय है 16 वर्ष का। Why does the Holy Spirit link so closely two sermons that were preached that far apart? तो फिर परमेश्वर ने इन 2 संदेशों के बीच में इतना अंतर है, लेकिन पास पास में इस संदेश को लिखा है क्यों? The only answer is इसका उत्तर यही है, we can give that is the subject material. यहाँ पर इसका जो विषय है उसको हम जानने के लिए, In both the things it is the downfall of Egypt. इन दोनों विषयों में हम देखते हैं मिस्र का गिराया If जाना। we see a bit deeper, यदि हम और भी गहराई से देखें, we understand that God gave that nation Egypt plenty of warning before judgment came. परमेश्वर ने और मिस्र पर न्याय दंड लाने से पहले कई बार चेतावनी दिया था। Later we see that the Babylonian emperor Nebuchadnezzar attacked Egypt. और इसके बाद हम बाबुल का जो राजा है उस पर हमला करना हम देखते हैं, And he decimated the nation, he crushed the nation. और उस जाति को पूरी तरह से उसने नाश कर दिया। He has already sacked and pretty much destroyed Phoenicia. और इससे पहले वो फिनिशिया को वो खत्म करके आया था। That is, Phoenicia means Tyre and Sidon. फिनिशिया का मतलब टायर और साइडोन है। And yet God says that Nebuchadnezzar did not receive enough pay. फिर भी परमेश्वर ने बोलता है कि नेबुकदनेजर को पूरी तरह से उसका शुल्क नहीं मिला है। And because enough pay for his service to the Lord. वो जो परमेश्वर की सेवकाई किया था उसके बराबर की शुल्क उसको नहीं मिला है। Why? क्यों ऐसा हो गया? God called Nebuchadnezzar as his servant. परमेश्वर ने नेबुकदनेजर को वो मेरा दास कहकर बुलाया। In chapter 29 29 अध्याय में and 18 to 20 you can read that. 18 से लेकर 20 वचन में आप पढ़िए। So from all these things we can understand that और इन सारी बातों से हमको ये समझने के लिए मिलता है, God does have his hand in the world's politics. परमेश्वर ने इस संसारिक राजनीति में भी वो अपना हाथ रखा है। He will be paying the nations for the service rendered in obedience to his word. और उसके कहना, उसका आज्ञाकारी बनने के वजह से उसने उनको अपना शुल्क देता है। From all these developments, और इन सारी बातों से we understand very clearly that हमको साफ साफ समझ में आता है, though the God of the Bible is known as the God of Israelites, परमेश्वर का बाइबल का जो परमेश्वर है इस्राएलियों का परमेश्वर कहलाया जाता है, but actually speaking he is the Lord of all nations, the whole universe. लेकिन वास्तव में देखते हैं हम सारे विश्व का वो परमेश्वर है। Let them be pharaohs of Egypt वो मिस्र के फिरौन चाहे हो, or different emperors of Babylon like Nabopolassar, Nebuchadnezzar and Belshazzar. और अलग अलग जो बाबिलोन के सम्राट लोग थे, नेबोपोलासर और नेबुकदनेजर था और बेल्शासर था, Or some Sanheribs of Assyria, और फिर अशूर के जो सनहेरिब थे, or the Greek kings, और फिर यूनानी के राजा, or the Caesars of Roman Empire, और फिर रोमियों के खुसरो लोग, even the rulers of 21st century, और our day. जो हमारे दिनों के बाद ये 21वीं
के राजा लोग, सम्राट लोग, And they may be anybody. कोई भी हो सकते हैं, They have to obey his word. और उसका कहना मानना ही है। The word of the Lord is final. परमेश्वर का वचन ही उसकी बात है, वो अंतिम है। In Isaiah 45:1, यशायाह की किताब 45 और 1 वचन में लिखा है, God called another Gentile king, that is Cyrus of Persia. परमेश्वर ने एक और अन्य जाति का राजा जो खुसरू था, वो फारसी का रहने वाला, And what he said? और उसके बारे में क्या बोला है? Cyrus is my anointed. और यह खुसरू है जो मेरा अभिषेक किया गया, And he called him my shepherd. और उसको बोलता है कि वो मेरा चरवा है। But in Ezekiel chapter 29, लेकिन एहजकेल की पुस्तक 29 अध्याय में in spite of the warning to Egypt, मिस्र को चेतावनी देने पर भी Ezekiel could not close this sermon. एहजकेल ने संदेश को वो खत्म नहीं किया। To be frank, God could not close this sermon. वास्तव से देखें तो परमेश्वर ने इस संदेश को समाप्त नहीं किया। Why? क्यों ऐसा He किया? wanted to give a word of grace for Israel. क्योंकि इस्राएलियों के लिए वो अनुग्रह का संदेश देना So चाहता Israel was sinning prolifically at that moment. है। और उस समय में इस्राएली लोग बहुत ऐसे पाप कर रहे थे, This is the special love God has towards his Israel. लेकिन ये जो प्रेम है इस्राएलियों के प्रति परमेश्वर का एक प्रत्येक प्रेम था। Yeah, what a wonderful God we are having. क्या ही अद्भुत परमेश्वर हमारा The परमेश्वर। word of grace can be read in today's verse. और आज के दिन के वचन में हम अनुग्रह का संदेश देख That सकते is Ezekiel 29:21. हैं। यही बात है एहजकेल 29 और 21 वचन So में। even today we see the same. आज के दिन भी हमको यही देखने के लिए मिलता है। You and I who are the born again children of God are the New Testament Israelites. आप और मैं जो परमेश्वर के संतान, नया जन्म पाए संतान, हम नए नियम के इस्राएली है। If you read Galatians 3:29, यदि आप गलतियों की पुस्तक 3 और 29 वचन में पढ़ेंगे, and if ye be Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. और यह लिखा है तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई है, जिस 3:29. 3 और उसका 29 वचन में हम पढ़े, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। So we are the people who accepted Lord Jesus Christ as their personal savior in this New Testament age are the seed of Abraham. जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया जो नए नियम के अनुसार, वो भी अब्राहम के वंश कहलाए So we are जाते the हैं। New Testament Israelites. और हम नए नियम के इस्राएली है। The moment you confess your sins and accept Jesus Christ as your personal savior and Lord, जिस समय आप प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, प्रभु ग्रहण किया है, the very moment you will become the seed of Abraham. उसी समय आप अब्राहम के संतान बन गए हैं। Then you can sing joyfully, every promise in the book is mine. जब आप बहुत ही आनंद से ये गीत को गा सकते हैं कि हर वायदा वचन जो वचन में लिखा है वो मेरा है, Every chapter, every verse and every line. हर एक अध्याय और हर एक वचन, हर एक लाइन वो मेरा है, Oh, अपना सकते हैं। then we will be the subjects, the people of his special love and care. जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर ने हमारे प्रति एक विशेष प्रेम रखता है। If the Gentiles, non-born again people commit sin, अन्य जाति लोग जिसका नया जन्म नहीं हुआ, यदि वो लोग पाप करेंगे, God judges them, God condemns them. परमेश्वर उनका न्याय करेगा, Yes. उनको दंड देगा। As his children, if we commit sin, यदि हम उसके संतान होते रहे, हम गलतियां करेंगे, he will chasten us, discipline us and restores us. वो हमें चेतावनी देता है, हमको सुधारता है और फिर से वापस वो उसके पास लेकर Oh, आता what a है। difference. देखना कितना अंतर है ना। When God could tame like that, Egypt like that, what about our enemies? जिस समय परमेश्वर ने मिस्र को इस प्रकार कर सकता है, तो हमारे दुश्मन, हमारे शत्रु के बारे में वो Yeah, क्या our enemies करेगा? are like pygmies, छोटा pygmies in God's sight. ये हमारे जो विरोधियां है, जो शत्रु है, परमेश्वर के दृष्टि में तो वो छोटे छोटे, वो नाटे हैं। Yeah, Egypt was a very powerful nation during the ancient times. और पुराने दिनों की बात है, मिस्र जो है बहुत शक्तिशाली, Oh, it was a self-sufficient, dominant and very cruel. वो बहुत खतरनाक था। वो अपने आप में उसके पास सब कुछ था, उसके पास। Yeah, during the days of Joseph, यूसुफ के दिनों में Egypt fed almost all the known world with grain. मिस्र ने उस दिन की जो सारे संसार को वो दान दिया था उनको, But God closed that chapter. लेकिन परमेश्वर ने वहां पर उसकी दशा को खत्म कर And दिया। reasons are many for that. और उसके लिए कई सारे कारण भी है, Because Egypt oppressed God's people. क्योंकि मिस्र ने परमेश्वर के लोगों को बहुत सताया था। Secondly, दूसरी बात, the land was full of idols.
और उस देश में जहाँ भी देखते हैं सब मूर्तियों से भरा हुआ। Then God used the very cruel or ruthless evil man Nebuchadnezzar to bring it down. उस समय परमेश्वर ने एक खतरनाक नेबुकदनेस्सर को और उस मिस्र पर भेजा था। What can we learn from this? तो इन बातों से हमको क्या सीखने के लिए God मिलता है? only helped Nebuchadnezzar to win over Egypt. तो परमेश्वर ही नेबुकदनेस्सर की सहायता की कि मिस्र पर विजय प्राप्त करे। But God had mercy in store for the house of Israel. लेकिन परमेश्वर ने इस्राएलियों के घराने के लिए वो अनुग्रह रखा है, After बचाया। conquering Egypt within 1 year, मिस्र पर विजय प्राप्त करने के बाद एक साल में Nebuchadnezzar became mad and was so for 7 years. नेबुकदनेस्सर ने 7 साल के लिए वो पागल बन गया था। When he was in the highest, Israel was at the lowest. जिस समय वो अपने ऊंची दशा में था और इस्राएली लोग नीचे की दशा They में, were in exile. और वो लोग बंदुआई में थे Oh, their bones were dead and dry. और उसकी हड्डियां वो सूखे हुए मरे हुए थे। The Lord promises in Ezekiel 29:21. परमेश्वर ने एजकेल 29 और 21 वचन में ये वायदा करते हैं, In that day, the house of Israel shall bud forth. और उस समय इस्राएल के घराने का एक सिंह उगाऊंगा The day of their deliverance shall begin to dawn, to rise. और उनका छुटकारे का दिन आएगा They shall have some little reviving in their bondage. और उनके जो बंधुआई में से उनका छुटकारा मिलेगा। God is telling, परमेश्वर ने कहते हैं yeah, today in today's promise, आज के दिन के I will give thee the opening of the mouth. मैं उनके बीच तेरा मुंह खोलूंगा। We all know how Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel were in power. शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल कैसे वो अधिकार में थे हम Oh, जानते their word prevailed even in Babylon and also Persia. हैं। और बाबिलोन के दिनों में और फारसी के दिनों में भी और उनका बात उनका कहना चलता था। And so, dear brothers and तो sisters, प्रिय भाई और बहनों, our God is a loving God. हमारा परमेश्वर प्रेमी So let us परमेश्वर, not sin against him. हम परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं Then करेंगे। he will make us head, not tail. ऐसा करेंगे तो वो हमको वो सिर बनाए रखेगा लेकिन पूंछ नहीं। He will judge our enemies. हमारे शत्रुओं को वो न्याय करेगा। He chastens us, he restores us, he elevates us. लेकिन वो और हमको सुधारेगा, वो हमको फिर से वापस उसके पास लेकर आएगा और हाँ हमारे स्थिति को ऊंचा करेगा। And may God help us to understand these truths clearly. और इन सच्चाइयों को हम ठीक तरह से समझने में परमेश्वर सहायता करें। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, you are a God who rules the whole world. प्रभु आप सारे जगत पर राज्य करने वाले, Oh Lord, you are the God of not only Israel, but the whole world. वो न केवल इस्राएल के लिए लेकिन सारे संसार के लिए आप You परमेश्वर। will be doing the things according to your own mind. सब कुछ प्रभु आपके मन के अनुसार आप करने वाले हैं। Even you can use Gentile people like Nebuchadnezzar. अन्य जाति का राजा जो नेबुकदनेस्सर का भी आप इस्तेमाल Even करें। you have used Cyrus, O Lord, to encourage the people to rebuild the temple. और लोग प्रभु मंदिर बनाने में कुसरू को भी प्रभु आपने प्रोत्साहन You दिया। can use anybody. आप चाहे किसी को भी आप इस्तेमाल कर In सकते the case of Prophet Balaam, you have used even a donkey. वो जो भविष्यवक्ता बिलाम के बारे में प्रभु आप गधे का इस्तेमाल किया। Oh, such a God is our God. तो ऐसा जो महान परमेश्वर हमारा परमेश्वर, So help us not to fear anything because you are in control. प्रभु हम किसी चीज से प्रभु हम नहीं डरना क्योंकि आप सब कुछ नियंत्रित करते हैं। You are still on the throne. आप आज भी प्रभु आप सिंहासन पर विराजमान है Guide us this day also. और आज के दिन भी प्रभु आप हमारे अगुवाई करें। In Jesus' precious name we pray. और यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना को हम चढ़ाते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।